ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। इस प्रकार से हम जानते हैं पवित्र बाइबल एक समुद्र के समान है। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਹਿਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। और आज बहुत से लोग इस बाइबल की बरकतों को, आशीषों को हासिल कर रहे हैं। ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। अभी देखिए ध्यान से सुनिएगा। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। अभी देखिए जिसको नहाना नहीं आता, समुद्र में जिसको तैरना नहीं ਅਤੇ आता, ਜਿਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ वो समुद्र का आनंद कैसे उठाता है? ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵੇਗਾ। जिस इंसान को समुद्र के अंदर तैरना नहीं ਅਤੇ आता, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨਾ नहीं ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, वो समुद्र का आनंद कैसा लेता ਉਹ है? ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਏਗਾ। वो बीच पे जाके ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ सिर्फ घुटने तक पानी के अंदर रह के वो आनंद लेता है। ਸਿਰਫ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਲਏਗਾ। अगर किसी को थोड़ा तैरना आता ਔਰ है, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੈਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो थोड़ा समुद्र की गहराई के ਉਹ अंदर ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ध्यान रखिएगा। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। पर जो गोताखोर होते हैं, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਾਖੋਰ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, है ना, वो समुद्र की गहराई के अंदर तक जा रहे हैं। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਤਲੇ ਤੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ इसलिए ਹਨ। आज देखिए, आज विज्ञान क्या कहता ਅਤੇ है? ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। आज भी समुद्र की गहराई तक वो पहुंच नहीं पाया। ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। साइंस अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका ਅਤੇ है। ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। विज्ञान बढ़ता चला जा रहा है, ਸਾਇੰਸ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पर आज भी विज्ञान समुद्र की गहराई तक पहुंच नहीं पाया। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ। यही है पवित्र बाइबल। ਇਹੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। जितना जाते जाएंगे गहराई बढ़ती जाएगी। ਜਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। इसलिए परमेश्वर आखिरी दिनों के अंदर हमें उस किनारे पे खड़े होकर आनंद लेने वाला नहीं मानता, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। है ना। हम उसके लिए नहीं बुलाए गए, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ। हम बस थोड़ा सा डुबकी मार के वापस आने के लिए बुलाए नहीं ਥੋੜਾ गए, ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ। पर हम कलाम की गहराई तक उतरने के लिए आए हैं। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੱਕ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ध्यान से समझिए, ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ। समुद्र के ऊपर कोई भी खूबसूरती इतनी नजर नहीं आएगी। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ पर ਆਏਗੀ। जैसे जैसे आप अंदर उतरते जाते हैं, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ पानी का संसार आपको अलग नजर आता है। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। टीवी के अंदर आज देखिए, डिस्कवरी के अंदर किस प्रकार से डिस्कवर किया जाता है आज समुद्री दुनिया को। ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖੋਜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। गहराई के अंदर उतरते जाते हैं। ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾਖੋਰ ਉਤਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। यही है पवित्र कलाम। ਇਹੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ। जितनी गहराई में उतरेंगे ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ उतनी ਉਤਰੋਗੇ अनोखी चीज दिखेगी, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਣਗੀਆਂ, इतनी अद्भुत चीजें मिलेंगी। ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਖਣਗੀਆਂ। आइए प्रिय परमेश्वर, ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, समय थोड़ा सा हमारे पास में है, ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ज्यादा समय ना जाया करते हुए ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ आइए, जब खुदावन यीशु मसीह इस धरती के ऊपर जीवन बिता ਜਦੋਂ रहा था, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੇ जब वो इस ਸਨ, दुनिया के अंदर था, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, जब वो इस दुनिया के अंदर रह के अपने जीवन को व्यतीत कर रहा ਜਦੋਂ था, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ आज हमारे ਸਨ। वचन पढ़िए, लूका 11 का 1 पढ़े। ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਬਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਲੂਕਾ 11 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਦ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। हाँ, अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? जब वो प्रार्थना कर रहा था, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ जैसे ਸੀ, ही वो प्रार्थना करके अलग हुआ, ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, तो चेले उसके पास में आए, ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ। और चेले उसके पास आके क्या कहते ਚੇਲੇ हैं? ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? हे गुरु, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखा। ਕਿ हे रबी ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। इसलिए प्रिय परमेश्वर के ਇਸੇ लोगों, ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, आखिरी दिनों के अंदर में भी किस प्रकार से प्रार्थना करना है बाइबल हमें सिखाती है। ਇਹਨਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ आज ਹੈ। बहुत से लोग प्रार्थनाएं कर रहे ਅੱਜ हैं, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ और ਹਨ, बहुत से बोलते हैं हमारी प्रार्थना को रिप्लाई हमें वापस नहीं मिल रहा ਪਰ है। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। कहीं कुछ हफ्ता हो गया है, महीना हो गया है, साल हो गया है, 2 साल हो गया है, 4 साल हो गया है, कोई भी रिप्लाई उनकी प्रार्थना का नहीं नजर आ रहा। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ, 10 ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਦੁਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। कोई भी उत्तर उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। चेलों ने यीशु से कहा, ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हमें प्रार्थना करना सिखा। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। इसलिए आज शाम के समय ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ हम ਵੇਲੇ इस पवित्र बाइबल के बारे में ध्यान, हम इस पवित्र बाइबल के इस वचन के ऊपर ध्यान करने जा रहे हैं। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ प्रिय ਹਾਂ। परमेश्वर के लोगों, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, इन आखिरी दिनों के अंदर ਇਹਨਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पवित्र बाइबल हमें 10 प्रकार से प्रार्थना करना सिखाती है। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ 10 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। किस प्रकार से हम अपने आत्मिक जीवन के अंदर प्रार्थना करना, हमें प्रार्थना करने का तरीका कैसे होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना करते ਅਸੀਂ हैं ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि हाँ मेरे को ये मिल जाए, ये हो जाए, चंगे हो जाए, ठीक हो जाए, भले हो जाए, ये मिल जाए, वो हो जाए, बहुत कुछ प्रार्थना कर कि रहे हैं। आ मिल जाए ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पर प्रार्थना का प्रोसेस क्या, प्रार्थना किस रीति से की जानी ਪਰ चाहिए? ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿया ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? इसलिए प्रिय परमेश्वर के इसी लोगों, करके खुदा के प्यारे लोगों, चेलों ने यीशु से कहा हमें प्रतिक्रिया सिखा, हमें क्रिया सिखा कैसे करें, इसका तरीका कैसा है? चेलिया ने कहा कि वो प्रक्रिया यानी कि वो तरीका, वो प्रोसेस केड़ी है, किस तरह से दुआ करनी सानू सिखा। आज देखिए आज बहुत से नए लोग जब कलीसिया के अंदर आते हैं, ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿया ਚ ਦਾਖਲ वो ਹੁੰਦੇ कहते ਹਨ, हैं संत जी हमें प्रार्थना लिख के दे दें ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਆ ਦਿਓ ताकि हम भी प्रार्थना ताकि करें। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕੀਏ। देखिए प्रार्थना करना, देखो दुआ करनी प्रार्थनाओं कई विषयों के लिए प्रार्थना ਅਤੇ करना ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ये एक अलग विषय है। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। पर पहले हम ये समझना प्रार्थना की कैसे जाए। पर पहला ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ। पहले से पवित्र बाइबल बताती है कि यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनना है ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਨ वो तो 10 प्रकार के अनुभवों को पवित्र बाइबल हमें दर्शाती है। ਤਾਂ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ इन ਪੇਸ਼ आखिरी ਕਰਦੀ ਹੈ। दिनों के अंदर हमारी जिंदगी के अंदर 10 प्रकार के तजुर्बे होने चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। यदि हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंची जाना है अगर ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ स्वर्ग तक पहुंचनी है तो तो पवित्र बाइबल कहती है हमें प्रार्थना करने का तरीका पता होना चाहिए। पवित्र बाइबल बोलती है कि सानू दुआ करने का तरीका आना चाहिए यदि है। हमारे पास वो तरीका नहीं है, हम कितनी भी प्रार्थना करें हमारी अरदास सुनी नहीं जाएगी। अगर साडी कोल तरीका नहीं, जितनी मर्जी से दुआ कर लिए साडी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आज हम प्रार्थना करते आज हैं, ਅਸੀਂ दुआ करते हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं, लोग नमाज पढ़ते हैं, कई पूजा करते कई हैं, पाठ पूजा करते हैं, कई लोग अरदास कर रहे ਅਤੇ हैं। कई लोग ਜਿਹੜੀ अरदास की सब हिम्मत लोग कर रहे अपने हैं। अपने ढंग से उस परमात्मा के गाड़ी बैठ के उपासना आराधना और प्रार्थनाएं करते हैं। सारे अपने ढंग ਦੇ ਨਾਲ परमेश्वर परमात्मा ਦੇ सामने बैठ के प्रार्थना उपासना बंदगियां प्रतियां कर रहे जैसा हैं। उनका ग्रंथ है, जैसा उनका उनके धार्मिक ग्रंथ उन्हें सिखाते हैं, वो उस रीति से आराधना या उपासना करते हैं। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਉਪਾਸਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। पवित्र बाइबल हमें ये सिखाती है किस प्रकार से प्रार्थना की जानी पर चाहिए। पवित्र बाइबल ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। इसलिए चेलों ने कहा कि हमें सिखा कि प्रार्थना किस रीति से करें। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ हमारी ਹੈ। प्रार्थना का आरंभ और हमारे प्रार्थना का एंडिंग क्या होना। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ अभी ਹੋਵੇ। जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। रॉबिन, हाँ जी, हमारी प्रार्थना का स्टार्टिंग तो हमारी प्रार्थना का एंडिंग कैसे होना चाहिए। किस तरह दुआ शुरू की जाए तो खत्म की जाए। बाकी कोई नहीं बोलिए, जिससे बाकी- पूछा जाए वही बोलिए। बाकी दूसरा ना कोई बोले, जिन्होंने पूछा जाए वही जवाब दे। कहाँ से प्रार्थना आरंभ करनी तो कहाँ पे समाप्त करनी है। अच्छा, अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दें, ठीक है। गोल्डी, कहाँ चालू करें तो कहाँ मुके। नहीं, वो तो प्रार्थना होगी। अभी हम लोग ध्यान करना है प्रार्थना का तरीका। और प्रार्थना के तरीके से ध्यान करना है। कैसे? जवान बच्चों में से यहां से बताओ, बच्चे लोग बोलो किस प्रकार से, कैसे, कहां से प्रार्थना आरंभ स्टार्ट करना है, कहां पे जाके एंडिंग करनी है। कित्थों प्रार्थना की शुरुआत करनी थी, कित्थे जाके समाप्ति करनी। हाँ जी, बोलिए बहन लोग, बोलिए पीछे से बोलिए, कहां से स्टार्टिंग तो कहां से एंडिंग। कित्थे शुरुआत कित्थे समाप्ति। अरे बाप रे, नया आ गया तो बोलेंगे हमें नहीं पता, जिद्दा आदि तो कर ले। भाइयों में से बताएं, पीछे से बताएं। स्तुति की से तो संडे सर्विस चलाने लगे। पिता से चालू करके यीशु पे क्या करना है, खत्म करना है। पिता परमेश्वर तो शुरू करनी है, यीशु मसीह के नाम दे विच समाप्त करना। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखो, यदि आप पिता से अपनी प्रार्थना को आरंभ कर रहे हैं, अगर तुसी पिता परमेश्वर तो अपनी दुआ की शुरुआत और कर आप रहे हो, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हो, 1 मिनट गुजरा, 1 मिनट बीत गया, 2 मिनट गुजरा, 2 मिनट बीत गए, 5 मिनट गुजरे, 5 मिनट बीते, 10 मिनट बीता, 10 मिनट लंघ गए, 15 मिनट बीता, 15 मिनट लंघ गए, आधा घंटा बीता, आधा घंटा बीत आप गया, आधे घंटे से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आधे घंटे तो दुआ कर रहे और आमीन करके उठ गए, आमीन करके उठ गए। पर आपने यीशु के नाम से, यीशु के वसीले से आपने यदि उस प्रार्थना को नहीं मांगा, खत्म नहीं किया, तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएंगी। पर अगर यीशु मसीह के नाम दे विच तुसी अपनी प्रार्थना समाप्त नहीं की, यीशु के नाम च नहीं मंगी, आमीन नहीं की, यीशु के नाम से दुआ नहीं सुनी जाएगी। कई मारना देखिए प्रार्थना करते ਅਤੇ हैं, कई विश्वासी दुआ करते हैं, है ना, वो लोग यीशु के नाम से बोलते ही नहीं है आमीन। वो इस तरह एंड च बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम दे विच बड़ी आमीन। अच्छी प्रार्थना कर बड़ी रहे हैं। वधिया प्रार्थना एक करते बार हैं। ऐसे संडे के दिन जब मैं यहाँ पर था, संडे के दिन किसी ने प्रार्थना करी, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, बहुत अच्छी प्रार्थना ਬਹੁਤ करी। ਹੀ ਟੌਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾर्थਨਾ ਕੀਤੀ।
और प्रार्थना करते 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 बड़ा आत्मा में भर के अच्छा प्रार्थना करते करते प्रार्थना खत्म। आते प्रार्थना करते करते आत्मा च भर के बड़ी ਵਧੀਆ प्रार्थना ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ। पास्टर जी ने आमीन करा, पास्टर जी ने आमीन बोलिया माइक के अंदर, माइक ਦੇ ਵਿੱਚ, है ना। इसलिए कई लोगों को पता नहीं है, इस करके कई लोगों को नहीं पता तो है। ध्यान रखिए हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की यार जाएगी, रखो सारी प्रार्थना कबूल नहीं होएगी, है ना। हम लास्ट में यीशु के नाम पर उस प्रार्थना को समाप्त करना। प्रार्थना ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ तो है। आइए किस प्रकार से बाइबल हमें प्रार्थना करने के तरीकों को सिखाती ਇਸ है। ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। पढ़िएगा, पढ़िए दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन। दूसरा इतिहास 7 बाब ਦਾ 14 वचन। दूसरा इतिहास 7 बाब ਦਾ 14 वचन। अति जो मेरी प्रजा जो मेरे नाम ते खवाती है अधीन होके प्रार्थना। हाँ, अभी इसमें क्या लिखा हुआ है? और इस वचन से लिखा है जो मेरी प्रजा मेरी कहलाती है, कि मेरी प्रजा जो कि मेरे नाम भी खवाਉਂਦੀ है, यदि वो हलीम नहीं तो अधीन होके प्रार्थना करें। जे अपने आप ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਜਾਂ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ प्रार्थना करे। इसलिए प्रिय परमेश्वर के इस लोगों, करके खुदा ਦੇ ਪਿਆਰੇ हम ਲੋਕੋ, जब कभी प्रार्थना करते हैं हम अपने आप को हलीम करें, अपने आप को नीवा करें। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੀਵਾ ਕਰੀਏ। यदि हम अपने आप को हलीम नहीं ਜੇ ਆਪਣੇ करते ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ और हम कितनी भी प्रार्थना कर ਅਸੀਂ लें, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆ ਕਰ आधा ਲਈਏ, घंटा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा प्रार्थना कर ले, हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ 4 ਘੰटे ਦਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ नहीं कीती लेकिन पवित्र जाती। कलाम में कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं हमारी अरदास से सुनी जाए, इसलिए आज बहुत लोग की प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ प्रार्थना तो कर रहे हैं, ਦੁਆ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं, कोई भी उत्तर नहीं ਕੋਈ मिल रहा। ਉੱਤਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, प्रार्थनाएं विनती कर तो रहे हैं, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ कोई ਹਨ, जवाब उतर के नहीं आ ਬਿਲਕੁਲ रहा। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। कारण क्या है? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? तरीका ठीक नहीं है। तरीका सही नहीं है। जब तक तरीका ठीक नहीं होगा, जब तक का तरीका दुरुस्त नहीं होएगा। अभी देखिए अभी बहुत से लोग ख्वाहिश रखते हैं कि जी मैं बिरयानी बनाना और चाहिए, देखो बहुत सारे लोग ख्वाहिश रखते कि मैं बिरयानी बनावा, है ना, कि मैं बिरयानी कि बनाना, मैं वधिया बिरयानी बनावा, पर उसका एक तरीका है। पर उन्हें बनाने का तरीका है। यदि आप उस तरीके के अनुसार उसको नहीं बनाएंगे, अगर उस प्रक्रिया के अनुसार नहीं बनाओगे, बना तो लेंगे, बनाते लगोगे। मेरे अंदर एक बड़ा ख्वाहिश हुआ अंबाला में रहने के समय, मेरे अंदर बड़ी बड़ी ख्वाहिश है अंबाला में रहते समय, कि लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा सी, मैंने सिस्टर को आज अपन लोग केक बनाते हैं, मैं सिस्टर ने बोलिया कि आज केक बनाते हैं, वो चलो हम लोग मिलके बनाते हैं, कहते चलो ठीक है मिलके केक बनाते हैं, चलो जी सब कुछ किया, सब कुछ किया। अभी हमें ठीक रीति से उसका प्रोसेस नहीं पता, और सानू तरीका नहीं पता किस तरह बनाया जाता अंडा है, कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, तेल कितना डालना है, दूध कितना डालना है, नहीं पता, नहीं पता अंडे कितने पाने हैं, चीनी कितनी पानी है, दूध कितना पाना, सब कुछ सामग्री सानू नहीं पता। अंदर जोश है कि नहीं आज केक बनाना, और अंदर एक बड़ा जोश है कि नहीं एक केक आज बनाना है। तारीफ खत्म किया, तारीफ खत्म की थी, दुआ खत्म करा, प्रार्थना खत्म की थी, फटाफट तीनों के किचन में चले गए, फटाफट तिना दे तिने रसोई घर चले गए, है ना। अभी केक बनाने जा आते रहे हुन हैं, केक बनाने जा रहे हैं। बेशक दुनिया मर रही थी, लोग कोरोना के अंदर पड़े थे, पर हम लोग केक बना आते रहे थे। बेशक दुनिया मारी लोग कोरोना दे फसे पर ਅਸੀਂ केक बनाने लगे हुए बड़ी सी। ख्वाहिश थी हमारी, बड़ी ख्वाहिश थी ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। स्टार्ट किया बनाना, आते बनाना शुरू ਕੀਤਾ, बेक किया, दुआ की उसको बेक करा, उसको ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ, अवन के अंदर ਉਸ ਨੂੰ रखा, ओवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ, बन गया, ਬਣ ਗਿਆ। थोड़ी देर के बाद बाहर थोड़ा निकाला, समय बाहर ਕੱਢਿਆ, तीनों उसके पास ਅਤੇ बैठे, ਤਿੰਨਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, अब ठंडा हुए तो काटे, ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਟੀਏ ਇਸ ਨੂੰ, अब ठंडा हुए तो खुशबू बहुत अच्छी ਅਤੇ आती है, ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, देखने को बड़ा खूबसूरत, ਦੇਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ। जब छुरी उसके ऊपर लगाई, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ, छुरी अंदर ही नहीं जा छुरी अंदर ही नहीं जा रही, कोशिश कर रहे पूरा हैं। जोर ला रहे हैं। मैं बोला सिस्टर रुको, ये ठंडा होएगा फिर शायद छुरी अंदर मैं जाएगी। कहा जी सिस्टर जी रुको ठंडा होएगा फिर शायद पोला हो जाएगा अंदर चल बोलते जाएगी। हाँ चलो ठीक है, कहते चलो ठीक है रुक जाने हैं। वो बाहर ही रखा हुआ, वो बाहर ही बरामदे में। रखा वरांडे च। फिर 10 मिनट के बाद आए, 10 मिनट बाद फिर फिर छुरी उसके ऊपर फिर रखे, छुरी फेरन लगे, छुरी अंदर ही छुरी नहीं अंदर नहीं जा रही। मैंने बोला है कोई बात नहीं, मैं कहा कोई गल नहीं, अपना प्लास लेके आओ। तुसी प्लास लेके आओ। छुरी को रखा, छुरी ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, उसके ऊपर से प्लास को मारा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਸ ਮਾਰਿਆ, है ना। बड़ी मशक्कत के बाद उसके एक एक पीस को अलग किया, ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਿਆ। खुशबू तो बहुत अच्छी थी, ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, है ना, पर वो केक की क्वालिटी का ਪਰ नहीं था। ਉਹ ਕੇਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। कारण क्या है? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? आग्रह तो है, पता तो ये केक है, ख्वाहिश तो है, पता है भी केक ही है, और उसकी रीति नहीं पता कैसे बनाया पर है। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ नहीं पता किਵੇਂ बनाया जाता उसी है। प्रकार हम प्रार्थना तो कर लेते उसी हैं, प्रकार से दुआ तो कर लेते हमारी हैं। प्रार्थना भी मेरे केक के वांगू हो जाती आते है, सारी प्रार्थना भी मेरे केक वांगू हो जाती कोई है, काम की नहीं रह जाती। किसी काम दी नहीं। इसलिए प्रिय इस परमेश्वर करके खुदा दे प्यारे लोगों, पवित्र कलाम कहता है जब कभी प्रार्थना करें तो खुदा खुद बोल रहा है प्रार्थना करो तो अपने आप को नीवा करो, मेरे अधीनों के प्रार्थना करो। इस करके पवित्र बाइबल बोलती है, परमेश्वर खुद ही बोल रहा है, ਜਦੋਂ कभी भी तुसी दुआ करते हो मेरे सामने अपने आप ਨੂੰ ਨੀਵਾ करके हलीम करके प्रार्थना करो। जब तक हमारे अंदर नम्रता नहीं हम प्रार्थना नहीं कर सकते, जब तक ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ नहीं ਅਸੀਂ दुआ नहीं कर सकते, हम प्रार्थनाएं कभी कर नहीं सकते। ਅਸੀਂ कभी भी दुआवां कर ही नहीं अभी सकते। बहुत समय पहले एक किसी एक विश्वासी ने एक वीडियो मुझे दिखाया, ਅਤੇ बहुत साल पहला किसी विश्वासी ने ਮੈਨੂੰ एक वीडियो दिखाई। वीडियो में उसने क्या दिखाया? उस वीडियो 'ਚ ਕੀ वो दिखाया? एक आतंकवादी का वीडियो था। एक आतंकवादी ਦਾ वीडियो ਸੀ। उस वीडियो के अंदर क्या दिखाया उस है? वीडियो
ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, उस आतंकवादी ने ਉਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ एक व्यक्ति के मुंह के ऊपर ब्लैक कलर कपड़ा बांधा ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ और एक ਬੰਨਿਆ, बड़ी सी तलवार उसने ली ਵੱਡੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ और एक सेकंड में उसका गला उसने धड़ से अलग कर ਅਤੇ दिया। ਇੱਕੋ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ उसी जगह पे उसने अपनी घड़ी में टाइम ਅਤੇ देखा। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ 'ਚ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਆ वो टाइम अरदास करने का था, नमाज पढ़ने का था, ਅਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸੀ और जो गले में अपना पढ़ना बांधा था ਅਤੇ उसने, ਗਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਰਨਾ ਬੰਨਿਆ वो पढ़ना उसने जल्दी से खोला, ਫਟਾਫਟ ਪਰਨਾ ਖੋਲਿਆ, उसने वहीं पर ही उस पढ़ने को बिछाया ਉੱਥੇ ਪਰਨਾ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ, और वहां पे उसने अरदास कर ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। सोच के देखिए, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, वहां पे वो इंसान तड़प रहा है, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ना ਜਿਹਦਾ, उसका हाथ उसका शरीर वहां पे तड़प रहा है। ਉਹਦਾ ਧੜ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੜਫ वो ਰਹੇ ਆ, बाजू में बैठ के क्या कर ਉਹ रहा ਲੱਗ है? ਬੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, दसो जी, नमाज पढ़। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ। ऐसी अरदासें, ऐसी प्रार्थनाएं स्वीकार की जाए, ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। इसलिए खुदा खुद बता रहा है, मेथड बता रहा है कि जी प्रार्थना करते हो तो कैसे करो, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਧि ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ कैसे करनी है प्रार्थना। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ। ਵਿਧि ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ, अपने आप को नीवा करना। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ। इसलिए जब कभी भी आप खुदा के घर में आते हैं, अपने घर में प्रार्थना करते हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁਆ अभी देखिए ਕਰਦੇ ਹੋ, पवित्र बाइबल के अंदर दो लोग मंदिर के अंदर प्रार्थना करने के लिए ਔਰ गए। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਣੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। एक ने प्रार्थना करी, ਇੱਕ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, मैं तो बहुत अच्छा प्रार्थना करने वाला ਮੈਂ हूँ, ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ मैं ਬੰਦਾ तो ਹਾਂ, जी दर्शन देखने वाला ਮੈਂ हूँ, ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, मैं तो जी दर्शन का अर्थ बताने वाला ਮੈਂ ਤੇ हूँ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ मैं ਹਾਂ, तो दशवांश देने वाला ਮੈਂ ਤੇ हूँ, ਦਸਵੰਧ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, मैं तो चंदे देता हूँ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਦੇ ਚੜਾਉਂਦਾ मैं ਹਾਂ, तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, बड़ा कुछ कर ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। चल रही प्रार्थना थी। ਉਹਦੇ ਚੱਲ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, वहीं पर दूसरे ने प्रार्थना ਪਰ करी। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। उसकी प्रार्थना करने का रीति क्या थी? ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ? कोई योग्य नहीं, ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, कोई खूबी नहीं, ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ कोई ਨਹੀਂ, लियाकत नहीं, ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ ਨਹੀਂ, ये जो खड़ा है इसके भी योग्य नहीं मैं तो। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਕਲੌਤਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। कलाम कहता है उसकी प्रार्थनाएं उसकी अरदास से सुनी गई। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। इसलिए आज बहुत से लोग प्रार्थना करते ਇਸ हैं, ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, बहुत से लोग घंटे घंटे बैठ के प्रार्थना ਬਹੁਤ करते ਸਾਰੇ हैं। ਲੋਕ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ध्यान ਰਹਿੰਦੇ ਆ। रखिए, घंटे घंटे की ऐसा नहीं कि घंटे घंटे प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ यहाँ ਸੁਣੇਗਾ। पर प्रार्थना करना है तो हलीम होके प्रार्थना करें। ਅਗਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। जब तक हम नीवे होके, हम अधीन होके प्रार्थना नहीं जब करते। तक ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਅਧੀਨ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ आज ਕਰਦੇ। बहुत से प्रार्थना तो करते हैं पर उनके अंदर हलीम ही नहीं है। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਲੀਮੀ आज ਹੈ हमारी ਨਹੀਂ। कलीसिया के ऐसे बहुत से लोग, बहुत से ईमानदार आपको देखने को ਅੱਜ मिलेंगे, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। उनके अंदर हलीमी नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ वो ਹੈ, झुकना नहीं चाहते, ਉਹ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, वो सर झुकाना नहीं ਉਹ ਸਿਰ चाहते, ਨੀਵਾਂ नहीं करना पर वो ਚਾਹੁੰਦੇ, प्रार्थना करते हैं, ਪਰ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, अरदास से करते हैं, ਬਿਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ खुदा ਹਨ, के आगे निवेदन रखते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। पवित्र बाइबल कहती है ऐसे निवेदन स्वीकार नहीं किए ਪਵਿੱਤਰ जाते। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। क्योंकि खुदा खुद बता रहा है मेरी प्रजा यदि नम्र होकर प्रार्थना करेगी तो मैं प्रार्थना को सुनूंगा। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗਾ। समय बीत रहा है, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, अब महीने बीत रहे हैं, ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਰਹੇ, साल बीत रहे ਸਾਲ हैं, ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, कोई रिप्लाई नहीं, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, कोई जवाब नहीं आ ਕੋਈ रहा, ਉੱਤਰ जवाब आ ही नहीं रहा। ना प्रार्थना, दुआ, स्तुति, आराधना का कोई भी रिस्पांस नहीं। दुआ, प्रार्थना, तारीफ उस तक सबको जा रहा पर कोई जवाब नहीं आ रहा। छोटे होते थे तो संडे स्कूल के अंदर गीत सिखाया जाता था। छोटे ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। कौन सा गीत? ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ? स्तुति आराधना। ਕਿ ਸਤੂਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ? कहाँ जाती है? ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸਤੂਤੀ ਆਰਾਧਨਾ? ऊपर जाती है। ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उसके बाद ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ आशीष लेके ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ नीचे आती है। ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। साढ़े तो साल नंगे ਪਰ उतर ही नहीं रही। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਕੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਰਕਤ। ऐसे पता नहीं कितने अटक गई, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਰਕਤ ਉੱਤੇ ਅੜ ਗਈ ਹੈ। महीना हो गया, साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, पता ही नहीं लग रहा, जा तो रही है पर रिप्लाई वापस नहीं आ रहा। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਤੂਤੀ ਤਾਰੀਫ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਰਕਤ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਅੜ ਗਈ। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, उसका मेथड सीखे। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੀਏ। हमने केक बनाया था, ਅਤੇ ਕੇਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ बड़ा जी केक बन गया, केक बन ਬੜਾ गया, ਵਧੀਆ ਕੇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। खुशबू आई, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਿਕਲੀ, देखने को बड़ा लाजवाब था, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੌਪ ਦਾ ਸੀ खाने योग्य नहीं ਪਰ था, ਖਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ पर ਸੀ। था तो केक। ਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਕ ਹੀ प्रार्थना तो है ਤੇ ਦਵਾਈ। प्रार्थना तो करते हैं, ਦੁਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ वो ਹਾਂ। प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंचेगी जिस प्रार्थना के अंदर हलीमी नहीं। ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। इसलिए प्रिय परमेश्वर, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, आखिरी दिनों के अंदर खुदा हमें हलीम, खुदा हमें नम्र बनाना ਇਹਨਾਂ चाहिए। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਹਲੀਮ ਤੇ ਨਮਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस करके हर ध्यान एक
रखो। स्वर्ग में नहीं जाएगा। हर बंदा स्वर्ग च नहीं जाएगा, सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। सारे नहीं स्वर्ग च जाएंगे। कोई खादिम, बहुत से खादिम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बहुत सारे परमेश्वर के दास स्वर्ग च नहीं जाएंगे। बहुत से पास्टर्स, बहुत से ब्रदर्स, बहुत से सिस्टर्स स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे ब्रदर, बहुत सारी सिस्टर स्वर्ग च नहीं अगर जाएंगे। बहुत से लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग स्वर्ग च नहीं बहुत से जाएंगे। पासवान स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बहुत सारे परमेश्वर के दास स्वर्ग च सारी नहीं जाएंगे। कलीसिया स्वर्ग में नहीं सारी जाएगी। कलीसिया नहीं स्वर्ग च जाएंगियां। पर जो हलीम है और जिसने अपने आप को उसके योग्य बनाया है वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। पर जड़ा हलीम है, जिसने अपने आप को योग बनाया है, वही स्वर्ग च उठाया जाएगा। जानना कि आपकी अरदास से स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक आपके अंदर नम्रता नहीं। इस करके जब तक तुम्हारे अंदर हलीमी नहीं है, तुम्हारी प्रार्थना कबूल नहीं की जाएंगियां। कृपया करके अपने आप को नम्र बनाएं। इस करके मेहरबानी करके अपने आप को हलीम जब भी बनाइए। खुदा के हजूरी के अंदर आते ਜਦੋਂ हैं, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, अपने पाप, ਆਪਣੇ ਪਾਪ, अपनी गलती, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, अपने शब्द, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ अपने ਸ਼ਬਦ, विचार, ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ, अपनी बातें, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, हर एक को खुदा के आगे रखें। हर एक चीज ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ भावे ਰੱਖੀਏ। सामने वाला रखे चाहे ना रखे, ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖੇ, आपका आप क्लियर करें। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ। आपके हृदय में क्या है आप उसको क्लियर कर खुदा के हजूरी में आए। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਓ। आप खुदा के हजूरी में आए, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ उसका ਆਓ। वो परमेश्वर देखेगा। ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ। यदि आप नम्र होके आप खुदा के हजूरी के अंदर नहीं आते, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਨਹੀਂ सारे ਆਉਂਦੇ, प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना कर रहे हैं, ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, तो आपकी भी स्तुति प्रार्थना ऊपर जाएंगी पर ऊपर से कुछ नहीं आने ਤਾਂ वाला। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਉਸ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? समझ में आनी गल? यदि हम प्रार्थना करते हैं, अगर ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं, ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, पर प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचना चाहिए। ਪਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। प्रार्थना का तरीका, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵਿਧि, आज हमारे पास प्रार्थना के विषय बहुत है। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹਨ। हमारे परिवार में बहुत से प्रार्थना के ਸਾਡੇ विषय, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ प्रार्थना ਲਈ। के विषय ज्यादा बढ़ाने से प्रार्थना, ये प्रार्थना करके प्रार्थना नहीं कहलाती। ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਧਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੁਆ ਨਹੀਂ कहवाਉਂਦੀ है। प्रार्थना का असल मकसद, असल मेथड है आप नम्र होना। पर प्रार्थना ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਤੇ ਵਿਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਜਾਂ ਨਮਰ ਹੋਵੋ। मैं नहीं कहता, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, पवित्र बाइबल कहती है, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। पवित्र बाइबल में खुदावन फरमाता है, पवित्र बाइबल ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, जेकर मेरी प्रजा अधीन होके प्रार्थना करे, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੇ, ये है प्रार्थना का तरीका। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ। इसलिए प्रिय परमेश्वर, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, जब भी खुदा की हजूरी में, जब भी अपने घर के अंदर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना को करें, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, नम्र होए, ਹਲੀਮ ਹੋਈਏ, हलीम होए, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, उसके बाद प्रार्थना ਉਹਦੇ करें। ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ऐसा नहीं कि जी प्रार्थना में हलीम होना है। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲੀਮ ਹੋਣਾ कई ਹੈ। लोग प्रार्थना में हलीम होते ਕਈ रहे, ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ना ਰਹਿਣਗੇ, बाहर शेर तो दुआ के अंदर बड़े बिगी बिल्ली के समान प्रार्थना ਅਤੇ करें। ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਾਨ है ना, ਹੋਣਗੇ। ऐसी प्रार्थना खुदा नहीं सुनता। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। प्रार्थना का मतलब है आप अपने आप के स्वयं को तोड़ें, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, आप नम्र बने, ਤੁਸੀਂ ਹਲੀਮ ਹੋਵੋ, खुदा के नजदीक आए, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ, प्रार्थना करें, ਦੁਆ ਕਰੀਏ। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ इससे क्या होता है कि ਕਰੇਗਾ। हमें प्रार्थनाओं के रिप्लाई हमें मिल नहीं पाते। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ इसका ਪਾਉਂਦਾ। मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना नहीं करते, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, पर हमारा जो मेथड है वो ठीक नहीं ਪਰ है। ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हमारा मेथड ठीक नहीं, हमारा तरीका ठीक नहीं ਸਾਡਾ है। ਤਰੀਕਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਧੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ इसलिए ਹੈ। कलाम कहता है नम्र बने, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਲੀਮ ਹੋ ਜਾਓ, हलीम होए, ਹਲੀਮ ਹੋਵੋ, कमी घटी के लिए क्षमा ਕਮੀ करें, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, माफ करें, ਮਾਫ ਕਰੋ, अपने आप को माफ ਆਪਣੇ करें, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, गलती के लिए माफी मांगे, ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। उसके बाद प्रार्थना के निवेदन रखना चालू करें। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ तब ਕਰੀਏ। आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार की ਫਿਰ जाएंगी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀਆਂ अन्यथा ਜਾਣਗੀਆਂ, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की ਨਹੀਂ ਤੇ जाएंगी। ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। और पवित्र बाइबल प्रार्थना का रिवाज, प्रार्थना की रीति किस प्रकार से बोलती है। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। मरकुस रचित सुसमाचार ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 अध्याय 11ਵਾਂ ਬਾਬ उसका 24वां वचन ਉਹਦਾ पढ़ें। 24 ਵਚਨ। ਮਰਕਸ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। मरकुस 11 का 24। ਮਰਕਸ 11 ਦੀ 24। इसलिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗੋ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। हाँ, हिंदी पढ़िएगा। ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। हाँ, अभी क्या लिखा हुआ है? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? यदि आप प्रार्थना करते हो, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ तो ਹੋ प्रार्थना करने का दूसरा मेथड क्या ਅਤੇ है? ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ? यदि आप प्रार्थना करते ਅਗਰ हैं ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ तो ਤਾਂ प्रार्थना में आप ये प्रतीत कर लें, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ आप ਲਵੋ, ये विश्वास कर लें, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ मेरे लिए
हो गया। कि ये काम मेरे लिए हो गया। आज से कि आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, देखो आज ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, आज हमने प्रार्थना करी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾर्थਨਾ ਕੀਤੀ, फिर सुबह हमने प्रार्थना ਕੱਲ करी, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, फिर कल हमने प्रार्थना ਕੱਲ करी, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, फिर परसों हमने प्रार्थना फिर करी, परसों दुआ की, फिर 4 दिन के बाद हमने प्रार्थना ਫਿਰ करी। 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। हम एक ही चीज के लिए प्रार्थना करते जाते करते जाते। ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। पवित्र बाइबल ऐसा नहीं कहता, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। पवित्र बाइबल इस प्रकार से समझाती ਪਵਿੱਤਰ है, ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, जब भी प्रार्थना करो, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, प्रार्थना आपने कर दिया, ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, एक विषय को आपने रख दिया, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, अब एक जब एक विषय को आपने रख दिया, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, बाइबल वो मेथड बता रही है कि आप बिलीव कर लें, विश्वास कर लें कि ये हो गया। ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। आप उसके लिए शुक्रगुजार करें, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ना कि अरदासें। ਨਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਦਾਸ। अभी हम एक विषय को ले लेते ਹੁਣ हैं, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, हम लगातार प्रार्थना करते ਅਸੀਂ हैं, ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, प्रार्थनाएं चलती चली जाती ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ हैं, ਚਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, प्रार्थनाएं चलती चली जाती ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ हैं, ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, चलती चली जाती ਚਲਦੀਆਂ हैं, ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, चलती चली जाती ਚਲਦੀਆਂ हैं, ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, प्रार्थनाएं बंद ही नहीं ਅਤੇ होती। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ये ਹੁੰਦੀਆਂ। प्रार्थना का मेथड नहीं ਇਹ है। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रार्थना का मेथड, प्रार्थना का तरीका क्या है? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਵਿਧि ਕੀ ਹੈ? कलाम कहता है, ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, जब कभी प्रार्थना करो, ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ, उसका रीति ये है, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, प्रतीत कर लो या विश्वास कर लो, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ मेरे लिए हो गया, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। और सिर्फ धन्यवाद करो। ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, उसके बाद उस विषय को छोड़ दो, ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, विषय के लिए धन्यवाद करते ਉਹਦੇ रहो। ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ खुदा तेरा ਰਹੋ। धन्यवाद हो। ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ। उदाहरण ले लें, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ अभी ਤੇ सोचिए, ਮੰਨ ਲਓ अभी सोचिए कि आपको एक गाड़ी की आवश्यकता है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂरਤ ਹੈ, अभी आप उस कार के लिए प्रार्थना करें ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ कि हाँ परमेश्वर, मुझे प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे कार ਕਿ चाहिए, हे प्रभु जी ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਦੇ। आपने कार के लिए प्रार्थना किया। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਲਈ ਮੰਗ ਲਈ ਦੁਆ अभी ਵਿੱਚ। रीति क्या है प्रार्थना की? ਹੁਣ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ? दूसरे दिन ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ। कार दिया, शुक्रगुजार करते हैं, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ धन्यवाद ਹਾਂ। हो, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद तेरा हो। धन्यवाद आप हो। उसको धन्यवाद करते रहिए, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, धन्यवाद करते रहिए, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, धन्यवाद करते ਧੰਨਵਾਦ रहिए। ਕਰਦੇ रहिए। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखो। परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार करेगा। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। और यदि आप महीना महीना प्रार्थना करते रहेंगे, दे 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 दे, आपके लिए नहीं होगा। ਪਰ ਅਗਰ ਮਹੀਨਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ये ਹੋਏਗਾ। प्रार्थना का नियम नहीं है। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो प्रार्थना का नियम क्या है? सबसे पहला, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? हलीम हो जाए, आप हलीम हो जाइए, नीवे हो जाइए, अनाधीन हो जाए, अपने आप को हलीम करो, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੀਮ ਕਰ ਲਓ, ਨੀਵੇਂ ਅਧੀਨ ਹੋ तब ਜਾਓ, तो आपकी वो प्रार्थना स्वर्ग तक ਅਤੇ पहुंचेगी। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦੁਆ स्वर्ग तक पहुंच जाएगी। उसके बाद प्रार्थना का दूसरा नियम क्या ਅਤੇ है? प्रार्थना ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? अजी, यदि प्रार्थना करते हो ਅਗਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ तो विश्वास कर लो, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ मेरे लिए ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ हो गया। ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। कलाम कहता तुम्हारे लिए हो जाएगा, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, पर हम लोग विश्वास नहीं ਪਰ ਅਸੀਂ करते, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ क्योंकि ਕਰਦੇ। हमारे लिए होता भी ਇਸੇ नहीं ਕਰਕੇ है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। महीना निकल जाता ਮਹੀਨਾ है, ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, हफ्ता निकल जाता ਹਫਤਾ है, ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, साल निकल जाता ਸਾਲ है, ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ, हमारे लिए नहीं होता। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। अभी देखिए, मैं एक जगह पे सेवा करने के समय में, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, है ना, छोटा लोकल था, ਛੋਟਾ ਲੋਕਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸੀ, थोड़े से लोग थे। ਥੋੜੇ ਸੇ ਲੋਕ ਸੀ, एक दिन सुबह सुबह हम तारीफ में बैठे हुए ਅਤੇ थे, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ तब ਹੋਏ ਸੀ। तारीफ खत्म करके तारीफ खत्म करके तो मैंने सिस्टर से बोला, सिस्टर जी हमको क्या लगता है कि हमारे फेतों में हम करना चाहिए? ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? तो सिस्टर, क्योंकि मैं सेंटर फेतों से आया था, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀ तो सेंटर फेतों से वापस आके लोकल में गया ਅਤੇ था। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਚ ਗਿਆ ਸੀ। सिस्टर सोचे कि मेरे को पैसा दिया सेंटर पास, ਅਤੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੜਾ। तो सिस्टर बोल रही, भैया जी आप पैसा व्यर्थ वेस्ट नहीं करना, ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਪੈਸਾ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, अपने पास रखो थोड़ा ਆਪ पैसा, ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, थोड़ा यूज करो। ਥੋੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। मैंने बोला पैसा कहाँ है? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? बोलते फिर आप पूछ क्यों रहे? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? मैंने आपको क्या करना है आप बताइए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। बोलते पास्टर ने कुछ बोला है? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ? पैसा देगा? ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ? मैंने बोला नहीं देगा। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। आपको क्या चाहिए आप वो बताएं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ। फिर तुम की हालत बहुत ही खराब है। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਸੀ, ਖਰਾਬ हमने ਸੀ। गिन के 15 विषय लिखे। ਅਤੇ ਗਿਣ ਕੇ 15 ਵਿਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖੇ। लास्ट जब सारे उसमें बर्तन थे, उसके अंदर चीजें थी, उसके अंदर सोफे थे, उसके अंदर नया फ्रिज था, बहुत कुछ था। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰਤਨ ਸਨ, ਸੋਫੇ ਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। वो फेतों में कभी पेंट नहीं हुआ ਉਸ था। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। हमने उस पेंट को भी लिखा ਉਸ कि पेंट भी होना चाहिए, ਪੇਂਟ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕਿ ਪੇਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और लगातार सब कुछ लिखने के बाद ਲਗਾਤਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ लास्ट में छोटी सिस्टर ने बोला, ਆਖਿਰ ਚ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਬੋਲੀ हमारा ये फेतुम टूट गया है और हमें नया फेतुम ਕਿ मिला। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। मैं चलो ये भी लिख देता। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। 15वां पॉइंट 15ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ वो भी लिख दिया। ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ।
उसके बाद ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ घुटने पे खड़े होकर हमने प्रार्थना करी। ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। एक विषय को खुदा के हाथों में सौंपा। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਿਆ। दूसरे दिन से ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ हमारी सुबह की दुआ में, ਸਾਡੇ ਸਵੇਰ ਦੀ रात की तारीफ में, ਤਾਰੀਫ ਚ, सुबह की तारीफ ਸਵੇਰ ਦੀ में, ਤਾਰੀਫ ਚ, एक विषय के लिए हम तारीफ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ हमें ਸੀ। फ्रिज मिल गया तारीफ ਸਾਨੂੰ करें, ਫ੍ਰਿਜ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हमारे खेतों में पेंट हो गया ਸਾਡੇ तारीफ ਵਿਸ਼ਵਾਸ करें, ਘਰ ਚ ਕਲੀ ਫੇਰ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ हमें ਹਾਂ। गाड़ी मिली इसलिए तारीफ करें, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ है ਹਾਂ। ना, हमारे किचन के अंदर जो बर्तन नहीं वो बर्तन हमें दिए उसकी तारीफ करें। ਸਾਡੀ ਰਸੋਈ ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਬਰਤਨ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਫ और ये ਕਰੋ। हमारा पुराना फिर तुम टूट के नया बढ़िया शानदार फिर तुम हमें बना के दिया उसके लिए तारीफ ਅਤੇ करें। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। तारीफ करते रहे। ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। एक महीना हुआ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। एक महीने के बाद ट्रांसफर, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। सिस्टर की बदली हो गई, ਸਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। लिस्ट वहीं पर थी, ਲਿਸਟ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। लिस्ट हमने हाथ में ली। ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਚ ਲਈ। मैंने बोला जी मैं भी चला तो आप भी चले। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ। सिस्टर बोलते कोई बात नहीं, हम जहाँ भी जाते हैं हम इस विषय के लिए तारीफ करते रहे। ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। लौटे, ਵਾਪਸ ਆਏ। नहीं नहीं हम लोग चले गए अपने लिए ਚਲੇ जगह। ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ। 20 दिन के बाद वापस उसी लोकल के अंदर फिर से आ गए, ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਲੋਕਲ ਚ ਵਾਪਸ फिर ਆ से ਗਏ। ट्रांसफर हुआ। ਫਿਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ। और जब ट्रांसफर हुआ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋਈ अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उस लिस्ट को उल्टा कर दिया। ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हमने पहला क्या पॉइंट डाला था? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ हमें बर्तन मिलना ਕਿ चाहिए, ਸਾਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ये ਹਨ, मिलना ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, वो ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। लास्ट में डाला था फिर तुम टूटे। ਅੰਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। परमेश्वर ने लिस्ट को ही उल्टा कर दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੂਚੀ ਉਲਟ ਦਿੱਤੀ। अंदर जाते से दूसरे दिन के अंदर फिर तुम तोड़ना ਅਤੇ चालू किया। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫੇਥ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ फिर ਕਰਤਾ। तुम बना, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਬਣਿਆ हमने उसके ऊपर टिक करते जा रहे ਅਤੇ हैं। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹੀ जिस ਮਾਰਦੇ ਜਾ दिन ਰਹੇ पहला ਸੀ। हथौड़ा उसके ऊपर चलाया, जिधर- मैंने सिस्टर को बोला अपनी लिस्ट में टिक करें, ਜਿੱਦਣ हमारा ਪਹਿਲੀ काम हो गया। ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਹਥੌੜੀ ਚੱਲੀ, ਹਥੌੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਵਿਸ਼ੇ और ਨੂੰ। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद चीजों को हम टिक करते चले गए। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमारे लिए काम ਇੱਕ किया। ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, प्रार्थनाएं मत करिए। ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। एक बात क्योंकि रीति क्या है, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? यदि आप एक विषय के लिए प्रार्थना कर लेते हो, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ आज ਲੈਂਦੇ से ਹੋ, तारीफ करो उसके लिए। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। कलाम कहता है जब प्रार्थना करो तो ये प्रतीति करो तुम्हें मिल गया, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। और जब मिल गया है तो उसके लिए बार बार दे दो करके क्यों कहना? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ ਦੇ ਦਿਓ। उसके लिए थैंक यू, उसके लिए धन्यवाद। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। इसलिए कुछ भी चीज चाहिए प्रार्थना करें, विषय रखें, उसके बाद धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ उसके ਚੜਾਈਏ। बाद प्रार्थना करने का तीसरा रीति कैसी ਅਤੇ है? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? आप पढ़िए पवित्र काम 12 अध्याय का 5 वचन पढ़िए। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ 12 ਬਾਬ ਉਸ ਦਾ 5ਵਾਂ ਵਚਨ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ 12 उसका 5। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ 12 ਬਾਬ 5ਵਾਂ ਵਚਨ। ਸੋ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। हाँ, अभी जब प्रार्थना करते हैं, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, प्रार्थना का तीसरा रीति, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ, अभी तीसरा तरीका क्या है प्रार्थना का? ਤੀਸਰੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ? पवित्र बाइबल कहती है हम मन लगा के प्रार्थना करें। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਲੌ ਲਗਾ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। पूरे लौ के साथ हम प्रार्थना करना। ਪੂਰਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਲੌ ਦੇ ਨਾਲ। प्रार्थना करते ਹੁਣ हैं, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, हाँ हो जाएगा, ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, खुदा कर देना कर देना। ਖੁਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ। और जब प्रार्थना हो जाती ਅਤੇ है, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, हमारे अंदर एक होता है कि अरे होगा कि नहीं होगा। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। और वचन क्या कहता है? और वचन क्या कहता है? आज जब प्रार्थना करते ਜਦੋਂ हैं ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, पूरा मन लगा के प्रार्थना ਪੂਰਾ करें। ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। और ध्यान दें कि आप जब सच्चे मन से आप प्रार्थना ਅਗਰ करते ਤੁਸੀਂ हैं, ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, परमेश्वर आपके अरदासों को, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। एक छोटा सा गवाही मैं आपको बताऊंगा, ਛੋਟੀ ਸੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ मेरी जिंदगी का ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ अनेक ਦੀ। अनुभव मैं आपको बताता ਇੱਕ हूँ। ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਾਂਗਾ। मैं जीरकपुर में सेवा करने के समय ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ में, ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, है ना, वहाँ पे सब जॉब करने वाले ਅਤੇ लोग हैं। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਲੋਕ और ਸਨ। 1 तारीख को सब लोग वहाँ दशमांश देते 1 हैं। ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੰਦੇ तो ਸਨ। मैंने किराए के घर का फिर तुम वहाँ पे किराए पे लिया, ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ तो ਉਹਨੂੰ। मैंने अनुमान लगाया। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ, मैंने पास्टर को बोला, पास्टर जी 2 तारीख को हमारे यहाँ पे घर का डेडिकेशन है, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ जी 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੈ, आप जरूर आना। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। पास्टर बोलते, पास्टर पीटर बोलते कितने लोगों को लेके आऊं? ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਜੈਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ मैंने ਲਿਆਵਾਂ? ज्यादा से ज्यादा सेवकों को ਮੈਂ लेके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। है ना, वो पूरी गाड़ी भर के ਉਹ लेके ਪੂਰੀ आए। ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, बोलते सारी पूरी गाड़ी भर के लेके ਪੂਰੀ आए। ਗੱਡੀ ਮੈਟਾਡੋਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। मैंने बोला चलेगा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲੇਗਾ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। 28 तारीख आई, 28 ਤਰੀਕ ਆਈ, 29 तारीख आई, 29 ਤਰੀਕ ਆਈ, तैयारी चल रही ਤਿਆਰੀ है, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ईमानदार आ रहे हैं, विश्वासी आ रहे हैं, झाड़ू कर रहे हैं, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਰਹੇ, वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे, पोछा कर रहे हैं, पोछा लगा रहे, वापस जा वापस रहे जा हैं। रहे। मेरे नजदीक कोई नहीं ਮੇਰੇ आया। ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
30 आ गई, 30 तारीख आ गई, 31 आ गई, 31 आ गई, सब काम हो रहा है, सारे काम चल रहे सारे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, साफ सफाई करके जा रहे साफ हैं, सफाई करके वापस जा रहे लेकिन हैं, मुझे पर्सनल मिल रही नहीं, पर निजी तौर पे कोई नहीं मिल रहा मैनू। अभी मेरी धड़कनें तेज हो गई, और मेरे दिल की धड़कन बदलनी शुरू हो गई। अभी ये जैसे ही सूरज ढलेगा कल सवेरे होगी और कल घर का डेडिकेशन है, आते जिवें सूरज डूबेगा कल सवेर होएगी, कल सवेरे उद्घाटन है, मीटिंग है, मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं, मेरे हाथ च रुपया भी नहीं है। अभी क्या करना, आते हुण की करना अभी मैं? जो लगातार दशवांश देने वाले वो हैं, ਜਿਹੜੇ लगातार बंदे दसवंध दिंदे ध्यान सन, रखिए मेरा भरोसा उनके ऊपर ध्यान है। रखो मेरा भरोसा ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ कलाम ਗਿਆ। कहता है श्रापित है वो इंसान जो इंसान के ऊपर ईमान लाए। पर वचन कहता सरापी ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ दूसरे इंसान ਤੇ ईमान या भरोसा उस रखे। जगह पे मैं लज्जित हुआ, खुदा ने मुझे लज्जित किया, उस जगह तो मैं शर्मिंदा होया, परमेश्वर ने शर्मिंदा किया वहां पे मैनू। मैंने इस चीज को सीखा, ਉੱਥੇ मैं ये चीज सिख ਲਈ। मैं कोशिश कर रहा मैं हूँ, कोशिश कर रहा इधर जा रहा हूँ, इधर ਨੂੰ जा रहा प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा खुदा किसी दशवांश वाले को लेकर आया, परमेश्वर किसी दसवंध वाले ने लिया, कि मेरी पहली सेवा पहला लोकल था, क्योंकि मेरी पहली सेवा तो पहला इतना लोकल विश्वास इतना ईमान मुझे नहीं इतना पता, विश्वास ईमान मैनू पता ही नहीं सी, पर चल रही थी सेवा, पर इस तरह गड्डी चल रही सी, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ क्या कर रहे हैं। 2 तारीख की सुबह हो गई, 2 तारीख की सवेर आ गई। 1 तारीख में जहां दशवांश सारे मेरे पास में आते थे वहां 1 रुपया भी नहीं आया। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ मैंने ਕੋਲ। बोला जी ये तो खेल ही उल्टा हो ਮੈਂ गया, ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਲਟੀ ਖੇਲ ਹੋ ਗਈ। अभी करना क्या, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? अभी मांग भी नहीं सकता, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, हाथ भी नहीं फैला ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ सकता, ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ। पास्टर जी आने वाले ਪਾਸਟਰ हैं, ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। है ना, चीजें जितना था मैंने चीजों को खरीद लिया, रख लिया, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲੀਆਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ। हुआ जी स्टार्टिंग, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। थोड़ी देर हुई, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, बड़ी गाड़ी आके रुकी, टेम्पो ट्रैवल, ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ। सेवक उतर रहे, सेवक उतर रहे, बड़ी अम्मा जी, ਵੱਡੀ ਅम्मा जी, छोटी अम्मा छोटी जी, माता, मोहाली के सेवादार, मोहाली के सेवादार, आसपास के सेवादार, लागे चागे के सेवक सारे उतर के आ सारे रहे, उतर के आ रहे। खाना भी बना दिया, खाना भी बना देता, कुछ कर दिया, सब कुछ कर देता, सारे नीचे चले सारे गए, थल्ले चले गए। 150 लोग उस डेडिकेशन के अंदर आए, 150 लोग उस फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ आए। मेरी जेब के अंदर सिर्फ 100 रुपए का नोट, मेरी जेब 'ਚ सिर्फ 100 रुपए ਦਾ नोट ਸੀ। अभी सब मुझे बोल रहे बदगी में बैठो, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠ। मेरे को तो वहाँ पसीने ही गिरे जा ਮੇਰੇ रहे हैं, ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ, है ना, मैं पसीने ही पूछे, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਸੀਨਾ ਪੂੰਝੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। मुझे लग रहा है मेरा बीपी डाउन हो ਮੈਨੂੰ जाएगा, ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਘਟ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। घबराहट मुझे हो रही, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਬੜੀ। आराधना कर रहे हैं सारे, ਸਾਰੇ ਬੰਦਗੀ कर रहे सारे हैं, शांति पा रहे हैं, मुझे अशांति हो रही है, ਸਾਰੇ शांति पा रहे ਤੇ ਮੇਰੀ शांति उड़ रही सारी। मुझे पता है साउंड वाला भी आ जाना है ਮੈਨੂੰ मेरे पता पास, साउंड वाले ने मेरे को आना है, खाने बनाने वाले ने मेरे पास आ रोटी जाना बनाने वाले ने मेरे को आ है, जाना बड़ा है, खाने का लिस्ट मेरे हाथ में आ ਵੱਡੀ जानी ਖਾਣੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲ खाने का भी लिस्ट मेरे हाथ में आ ਅਤੇ जानी ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਸੌਦੇ ਦੀ ਆਉਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अभी करूँ तो ਅਤੇ करूँ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? कभी ऊपर ਕਦੀ ਉੱਤੇ कभी नीचे, ਕਦੀ ਥੱਲੇ, समझ नहीं आ रहा ਮੈਨੂੰ क्या ਸਮਝ करूं। ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। जैसे तैसे बहुत बढ़िया डेडिकेशन हो गया, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਮੀਟਿंਗ ਚੱਲ ਗਈ, अच्छा मीटिंग चल गया, ਚੰਗੀ ਮੀਟਿंग ਚੱਲ ਗਈ। मैं ऊपर खड़ा मैं हुआ, ऊपर खलोता सी। मैंने खुदा मेरी आज मैंने जो गलती कर दी कभी जिंदगी में नहीं मैं करी, क्या परमेश्वर ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। आज कम से कम मेरी लाज रख, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਾ। अभी समझ नहीं आ रहा करूँ ਅਤੇ क्या, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। सब खाना खा रहे हैं, ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ, सारे आ रहे हैं, ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ, खाना बहुत टेस्टी था, ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸੀ। जय मसीह की, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚੱਲ मैं भी ਰਹੀ, करा जय मसीह ਮੈਂ की, ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੋਲਿਆ, ਚਲੇ गए। मैंने बोला अच्छा, मैं जी जय मसीह। फिर दूसरे निकल के फिर आए, दूसरे निकल के आए, बहुत बढ़िया मीटिंग, बहुत बढ़िया बंदगी, बहुत बढ़िया खाना, बहुत बढ़िया खाना, संत जी जय मसीह संत जी जय मसीह दी, कभी हमें भी याद रखा कभी करो, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। कि हाँ जी चलो याद मैं रखेंगे, जी वो भी ठीक है चले जी, गए, याद रखांगे, चले गए। आते जा रहे जाते जा रहे, आते जा रहे जाते जा रहे, बड़े खुश। बहुत खुश। बाद में एक माता जी आई, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ उसके आई बीच में साउंड वाला आ ਅਤੇ गया, ਉਹਦੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਆ बोलते ਗਿਆ। फादर जी टाइम हो गया है जी, मुझे पैसा दें, 1500 रुपए जमा कराएं तो मैं चलूं। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। मैंने बोला खाना खाओ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। बोलते जी खा लिया, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾ ਲਿਆ। मैं परिवार के लिए बांध के ले ਮੈਂ गया, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। जब तक बंधेगा नहीं ऊपर नहीं आना, ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਲਣ ਮੈਨੂੰ। भेज दिया ਉਹਨੂੰ नीचे, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਥੱਲੇ। किसी ईमानदार को बताया, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। चल रहा है चल रहा है, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। किसी ने कुछ हाथ में दिया, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, किसी ने कुछ हाथ में किसी दिया, ने कुछ हाथ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। लेकिन जीरकपुर नया था, वहाँ पे कमरे नहीं थे, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਰਕਪੁਰ ਨਵਾਂ ਸੀ ਕਮਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ मैं ਉੱਥੇ। जल्दी से बाथरूम में गया, ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ, बाथरूम को बंद किया, ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ गिनना चालू किया, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ 1500 रुपए, 1500 ਰੁਪਇਆ। है ना, सबके मिला के 1500, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1500 जल्दी ਰੁਪਇਆ से निकला, फटाफट निकलिया। मैंने साउंड वाले को मैं पकड़ा, साउंड वाले ਨੂੰ ਪੈਸੇ ऐसे ਫੜਾਏ करते 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 जिसका जो थोड़ा बहुत देना था वो दे दिया, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। लास्ट में पास्टर के हाथ में देने के लिए ਅੰਤ ਦੇ कुछ ਵਿੱਚ नहीं ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ था। ਨਹੀਂ। मेरी हिम्मत टूट ਅਤੇ गई, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। मैंने क्या किया, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं आपको ਮੈਂ बता, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं बाथरूम के अंदर ਮੈਂ गया, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਗਿਆ, एक ही वॉशरूम था, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸੀ, बहुत ही गंदा था, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ। 150 लोगों ने यूज किया था। 150 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। मैंने उधर पे जाके एक ईंट को रख के उसके ऊपर घुटने टेक के मैं खड़ा हो गया। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਤੇ ਗੋਡੇ ਉੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। मैंने बोला खुदा तेरे सेवक बड़े आए हैं, ये खाली हाथ नहीं जाना, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸੇਵਕ ਇੱਥੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 100 ਵੱਡੇ रुपया ਸੇਵਕ मेरे पास में है, 100 ਰੁਪਏ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। है ना, बस इतना तो लाज रख के मैं इनके हाथ में कुछ ना कुछ दे के भेजूं। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੈ ਕਿ ਕੁਛ
ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ मैंने ਕੇ ਭੇਜਾਂ। अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती ਹਾਂ, कर ਤੇ दी ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। कि मैंने तुझे छोड़ के मैंने इंसान के ऊपर आश्रय किया। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ उस ਨਜ਼ਰ बाथरूम में ਰੱਖੀ, स्मेल इतनी गंदगी इतनी उस बाथरूम के ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ अंदर, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ, पर मैं दुआ कर रहा हूँ। ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। मैंने कम से कम सब ढूंढ रहे हैं, वहां मेरे को पीछे से नॉक कर रहे, भेरे जी जल्दी आओ, पास्टर जा रहा है। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆ ਰਹੇ। मैं तारीफ करता मैं रहा, तारीफ करता कम से कम रहा। फिर 5 मिनट मैंने उस बाथरूम के अंदर तारीफ ਅਤੇ की। 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। बाहर निकल के ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ आया, ਆਇਆ, फिर एक कोई ईमानदार ਫਿਰ आया, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਇਆ, उसने मुझे कुछ पैसा दिया, ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ, थोड़ा सा कुछ ऑफरिंग उसने ਥੋੜਾ दिया। ਜਿਹਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। चलो उसमें से दे के थोड़ा सा पास्टर को, थोड़ा सा अम्मा जी को, थोड़ा सा किसी को, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ। चलो खुश होकर सारे चले गए। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। मैं वहां पे खड़ा, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपया बचा। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਏ ਬਚਿਆ ਸੀ। लास्ट कितना बचा? ਅਤੇ ਆਖਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ? आखिर का सिर्फ 100 रुपया। ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਈਆ। सब चले गए, ईमानदार सारे चले ਸਾਰੇ गए, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਚਲੇ ਗਏ, सब खो गया, सब पहुंच गए। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। मैं खड़ा हूँ, ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, दो ईमानदार ਦੋ खड़े हैं, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਖਲੋਤੇ, बाहर थोड़ी डिस्पोजल प्लेट्स पड़ी हुई ਅਤੇ थी। ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਪਲੇਟ ਬਾਹਰ ਪਈਆਂ ਕੁਝ। रात का 10 बज रहा है, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜ ਰਹੇ। 100 रुपया मेरी जेब के 100 अंदर ਰੁਪਈਆ है। ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਿਰਫ। एक शराब पीते हुए वहां से आए। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਰੱਜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ तो ਪੂਰਾ। हम लोग वहां पे प्लास्टिक उठा रहे ਉੱਥੇ थे। ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। वो कहता फादर ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਦਰ ਜੀ आप नहीं उठाओ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੋਗੇ, अंदर जाओ, ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ खड़े हो जाओ, जाओ, ਖਲੋ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, मैं उठाऊंगा। ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਇਹ। मैंने चल फिर तू उठा लिया, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਉਠਾ ਲਾ। सारा उठा लिया। ਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਤੀ। फिर मेरे पास में ਫਿਰ ਮੇਰੇ आया, ਕੋਲ ਆਇਆ, बोला पाजी खाना खा के जाओ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ। फादर जी खाना नहीं चाहिए। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਦਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। मैंने बोला फिर क्या ਮੈਂ ਜੀ चाहिए? ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? एक 100 रुपये का नोट। ਕਹਿੰਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿਓ ਬਸ। मैंने बोला अच्छा, मैंने रोटी नहीं चाहिए। ਮੈਂ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। पता नहीं, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, सिर्फ एक 100 रुपये का ਸਿਰਫ नोट। ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ और ਦਿਓ। जब तक दोगे नहीं मैंने जाना। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। अभी मुझे पता है कि मेरे पास 100 रुपया ही है। ਮੈਨੂੰ पता ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ 100 ਰੁਪਈਆ। तो वो विश्वासी बोलता जी दे के परे ਉਹ मारो। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ। मैंने बोला चल ठीक है दे दे। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। मैंने निकाला, ਮੈਂ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ, उसके हाथ में ਉਹਦੇ दिया। ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। वो बड़ी खुशी के साथ चला, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। सब हो गया। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। कमरे के अंदर आए, ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, खुदा को धन्यवाद, ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। रात के 12:30 बज रहे। ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। जैसे ही बैठा मैं, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, अचानक से बेल बजी। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜੀ। एक ईमानदार आया, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆਇਆ, और आर्मी में था, ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ वो ਸੀ। जल्दी से आया। ਫਟਾਫਟ ਆਇਆ, वो कहते भाई जी मुझे माफ करना। ब्रजी ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। वो कहता भाई जी मैंने दशमांश देना ही भूल गया। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। मैंने बोला चलो सुबह दे देते थे। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बोलते नहीं भाई जी मेरे ना दिमाग से ही निकल गया। ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ। है ना, मैं आपको 30 तारीख को देना था, मेरे दिमाग से ही निकल गया कि आपको दशमांश देना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਵੰਧ तो ਦੇਣਾ। जैसे मैंने रात को मेरी बाइबल खोली तो उसके अंदर एनवलप पड़ा हुआ ਅਤੇ है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ वो ਲਿਫਾਫਾ कहता ਪਿਆ है, ਸੀ। जो खुदा का वो खुदा घर में पहले जाना ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ चाहिए। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵੇ। मैंने बोला चल ठीक है दे दो। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। उसको खोला, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ, उसके अंदर 20,000। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 20,000। अभी सोच के देखिएगा, ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, यदि ये 20,000 मुझे 30 तारीख को मिल जाते ਜੇ तो ਇਹ 20,000 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ विश्वास किसके ऊपर था? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਮੇਰਾ? बोले किसके ऊपर था? ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? पर खुदा ने लज्जित करके, अपमानित करके, पराजित करके ये चीज सिखाया कि श्रापित है वो इंसान जो जीवित इंसान के ऊपर भरोसा करे। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਹਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਜਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਪੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ। इसलिए प्रिय परमेश्वर, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, पूरे मन के साथ आप खुदा के आगे प्रार्थना करें। ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ताकि ਕਰੋ। मैंने अपने आप के वो अनुभव किया, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ। वो 5 मिनट की प्रार्थनाओं मेरे लिए वो एक पूरे दिन की प्रार्थना थी। ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ जब ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ एक ਸੀ। सच्चे दिल से पावे। अभी ऐसा नहीं कई लोग सोचे हाँ जी संत जी ने बोला 5 मिनट की प्रार्थना सच्चे दिल से, तो हम 5 मिनट ही करेंगे। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ, नहीं, पर जब किसी परिस्थिति में आप फंसते हैं, ਪਰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫਸ ਜਾਓ, आप जरूर प्रार्थना करें। ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਕਰੋ। परमेश्वर आपकी अरदासों को जरूर, आपको तुरंत परमेश्वर आपको रिप्लाई करेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। इसलिए कलाम कहता है सच्चे मन से लौ लगा के प्रार्थना ਇਸ करें। ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੋ। ये हम लगन के साथ प्रार्थना ਪੂਰੀ करते हैं, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ तो ਤਾਂ परमेश्वर हमारे लिए काम ਅਤੇ करेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। उसके बाद पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 14 वचन पढ़े। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਯੋਹਨਾ 5 ਬਾਬ ਉਸ ਦਾ 14 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ।
हाँ, अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ हम जो मांगते हैं, जो अरदास करते हैं, खुदा की इच्छा के अनुसार मांगे। ਅਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗੀਏ कभी कभी अपनी इच्छा के अनुसार मांगते ਕਦੀ हैं, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਗ इसलिए ਲੈਂਦੇ हमारी ਹਾਂ प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं की जाती ਇਸੇ है। ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जैसे कलाम कहता है प्रार्थना का मेथड क्या है? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵਿਧि ਕੀ ਹੈ अपनी इच्छा अपनी खुशी से ना मांगे। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਗੀਏ खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की इच्छा क्या है? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ यदि खुदा की मर्जी करते हुए मांगेंगे तो परमेश्वर हमें करेगा, हमें अगर देगा। अगर परमेश्वर की इच्छा करते हुए मंगेंगे तो परमेश्वर ਸਾਡੇ ਲਈ करेगा इसलिए प्रिय परमेश्वर के ਇਸ लिए ਕਰਕੇ खुदा ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाना है तो हम एक रीति के अनुसार प्रार्थना करें। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਅਗਰ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ हम ਕਰੀਏ विश्वास को छोड़े बिना प्रार्थना करना चाहिए, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਗੈਰ ਦੁਆ ਕਰਨਾ के ਚਾਹੀਦਾ साथ प्रार्थना ਪੂਰੀ करना ਹਿੰਮਤ ਦੇ चाहिए। ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ हम ਚਾਹੀਦੀ अपने ਹੈ आप को हलीम, अपने आप को दीन होकर प्रार्थना ਅਸੀਂ करना ਆਪਣੇ है। ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾ ਤੇ ਹਲੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰਨੀ इसलिए ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ पवित्र बाइबल कहती है हम संघर्ष, हम लौ लगाते हुए प्रार्थना ਇਸ करना ਕਰਕੇ है। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ यदि ਹੈ हम संघर्ष के साथ जद्दोजहद करते हुए प्रार्थना करेंगे तो हमारी अरदास से हमें प्रार्थनाएं स्वीकार की जाएंगी और अगर- हमें रिप्लाई मिलेगा। ਅਗਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਨ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ इसलिए ਮਿਲੇਗਾ वो हलीमों की प्रार्थनाओं को ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਲੀਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना ਇਸ ਕਰਕੇ करें, ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰੀਏ इसलिए पूरे मन के साथ प्रार्थना ਇਸ ਕਰਕੇ करें ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ कि हाँ ਕਰੀਏ खुदा तो मेरे लिए ऐसा करेगा। कि हाँ परमेश्वर तू जरूर मेरे लिए इस तरह करेगा और आप जब भले आप कैसी भी परिस्थिति के अंदर ਅਤੇ फंसे, बेशक ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਵੋ अभी देखिए ਹੁਣ ਦੇਖੋ छोटा सा का बोल के मैं आपको समाप्त करूंगा। ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ देखिए योना ने प्रार्थना करी। ਦੇਖੋ ਯੂਨਾ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ योना कहाँ था? ਯੂਨਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ दसो जी, ਦੱਸੀਏ कहाँ पे था? ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਸੀ मच्छी के पेट में। ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ पर योना क्या सोच रहा था? ਪਰ ਯੂਨਾ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ क्या सोच रहा था योना? ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯੂਨਾ योना का अपनी प्रार्थना में क्या बोल रहा ਆਪਣੀ है? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ योना अपनी प्रार्थना में बोल रहा है खुदा मैं तो अधोलोक तक चला गया। ਯੂਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਉਤਰ ਗਿਆ अभी योना के दिमाग में मच्छी नहीं है, जगह पानी में था, ਹੁਣ ਯੂਨਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ उसको ਉਹ समझ ही नहीं आया। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ हालांकि वो था किधर, ਉਹ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ उसके दिमाग में क्या चल ਪਰ रहा ਉਹਦੇ था? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ वो ਸੀ प्रार्थना कर रहा ਉਹ है ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ मैं अधोलोक से पुकार ਕਿ रहा हूँ। ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ था ਹਾਂ किधर ਪਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ था किधर ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ दसो जी, ਬੋਲੀਏ था मच्छी के पेट में, ਤੇ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ है ना। पर वो प्रार्थना क्या कर रहा ਪਰ है? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ परमेश्वर में अधोलोक से पुकार रहा ਕਿ हूँ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਰਿਹਾ अब ਹੈ मैं पताल से तुझे प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरी अरदासों को सुन। ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ मुझे ਲੈ मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दे। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ बाइबल कहती है उसने प्रार्थना करा, परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दिया और उसने योना को गल दिया। ਆਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਗਲਾਚ ਦਿੱਤਾ इसलिए प्रिय परमेश्वर ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ हम कैसी भी परिस्थिति में फंसे हैं, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸ अभी ਜਾਈਏ देखिए अभी योना ने ये नहीं सोचा हाँ जी अब तो मैं पताल में उतर ही गया, अभी क्या मतलब प्रार्थना करने का। ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੋਨਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ देखिए उसके दिमाग में था कि मैं पताल में, उसको मच्छी के बारे में कोई उसको ज्ञान ही नहीं था। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ कि ਨਹੀਂ मुझे ਸੀ मच्छी निगल लिया, कि मैं मच्छी के पेट में, उसे वो ये सब नहीं पता था। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ पर ਮੌਜੂਦ वो ਹਾਂ प्रार्थना कर रहा है ਪਰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ क्योंकि वहाँ अंधकार था, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ वहाँ पे तो कोई लाइट जल नहीं रही थी, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ कोई ਰਹੀ ਸੀ अंधकार था, ਕੋਰ ਅੰਧਕਾਰ सारा स्मेल और सारा गीला वहाँ पर था, ਸਾਰਾ ਗਿੱਲਾਪਨ ਤੇ ਬਦਬੂ ਸੀ है ना। और वहाँ पर उसके अंदर बैठ के वो बोल रहा है कि मैं पताल के अंदर से तुझे पुकारना ਅਤੇ चाहिए। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ प्रिय परमेश्वर, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ आप कोई सी भी सिचुएशंस के अंदर क्यों ना हो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੋ प्रार्थना करना बंद ना करें। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ आज बहुत से लोग प्रार्थना करना बंद कर देते ਅੱਜ हैं, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ आराधना ਦਿੰਦੇ करना छोड़ देते हैं। ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ध्यान रखिए ऐसा मत कीजिए। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ आखिरी आप मसीही हैं, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ छोटी छोटी सी चीज के अंदर, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ अपने घर के अंदर छोटी सी कोई बात हो जाती ਕੋਈ है, ਗੱਲਬਾਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਹੋਗੀ तो ऊंची नीची कुछ बात हो ਕੋਈ जाती ऊंच है, नीच होगी ਗੱਲਬਾਤ तो रोटी नहीं छोड़ते, ਰੋਟੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ खाना नहीं छोड़ते, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ चावल नहीं छोड़ते, ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ चाय नहीं छोड़ते, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ पानी नहीं छोड़ते, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ कुछ नहीं छोड़ते। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ क्या छोड़ते हैं? ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ जोर से बोले क्या छोड़ते हैं? ਕੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ हाँ जी मेरा दिमाग खराब हो गया, अभी मेरे प्रार्थना करने ਮੇਰਾ का नहीं बोला। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ मैं प्रार्थना नहीं करना। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਦਾ यानी कि इसका रीजन क्या है? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ जब एक आदमी का दिमाग खराब हो जाता है तो वो खाना नहीं छोड़ सकता, वो रोटी नहीं छोड़ सकता, पर वो प्रार्थना छोड़ेगा। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਪਰ ਦੁਆ ਛੱਡੇਗਾ वो प्रार्थना छोड़ देगा, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ आराधना छोड़ देंगे, आराधना ਛੱਡ संडे ਦੇਵਾਂਗੇ मीटिंग में आना छोड़ ਸਮੇਂ देंगे। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਰ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ अगर कोई ये नहीं बोलेगा हाँ मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा है मैं आज से फोन चलाना छोड़ देना, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ
गुस्सा आज तो मैं फोन चलाना बंद कर हटाओ देना, मेरे सामने से फोन। सुट्टो इस फोन मेरे तो परे नहीं, मैं आराधना नहीं करूंगा। मैं नहीं बंदगी करांगा। मुझे खुदा की हजूरी में बैठने के लिए बोलना नहीं चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ मुझे ਚਾਹੀਦਾ। आप नहीं बोलो कि बाइबल पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ। मुझे आप नहीं बोलो कि आत्मिक जीवन के अंदर आगे बढ़ो, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ध्यान रखिएगा, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, कैसे भी आप मसीही हैं, ਕਿਸੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ। यदि आप मसीही हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में चले जाएं। इसलिए कलाम कहता है चाहे तो आग में चले जाए, पताल में चले जाए, आकाश में चढ़ जाए, समुद्र में उतर जाए, मैं तेरे साथ हूं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਏ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ, ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ इसलिए प्रिय परमेश्वर के ਕਰਕੇ लोगों, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, अरदासें बंद ना करें, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, प्रार्थना बंद ना ਦੁਆਵਾਂ करें, ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, आराधनाओं में आना बंद ना करें। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ आज ਕਰੀਏ। बहुत से लोग मीटिंगें छोड़ देते ਅੱਜ हैं, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੰਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, है ना? बहुत से लोग आराधना को छोड़ देते ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ हैं ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, छोटी छोटी सी बात के ਛੋਟੀ लिए, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ, छोटी छोटी सी क्रियाओं के ਛੋਟੇ लिए, ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। अल्लाह ताला के सृष्टिकर्ता के आने से वो इनकार कर देते हैं। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਾਰ कितने ਕਰਦੇ ऐसे ईमानदार हैं जो संडे सर्विस को छोड़ देते हैं, ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ है ਆ। ना? छोटी सी बात ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ, के अंदर कोई छोटी सी बात ਘਰ 'ਚ हुआ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ, घर का गुस्सा, परिवार का गुस्सा काय पे निकलेगा? ਘਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੱਢਣਗੇ, परमेश्वर की। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਗੇ। गलती किसकी? ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ परमेश्वर की। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। इसने संडे की आराधना लेके आया, ਇਹੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਿਆਇਆ, इसने बाइबल स्टडी लेकर ਇਹ आया, ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਕੇ और ਆਇਆ। अभी ऐसा चल रहा है मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी मैं बाइबल स्टडी में नहीं ਹਾਂ हूं। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, इसलिए मैं बाइबल पापा स्टडी मुझे नहीं बोलना अभी, ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ मम्मी ਬੋਲੋ, मुझे अभी नहीं बोलना, ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, मुझे नहीं बोलना प्रार्थना के लिए, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, मैं नहीं बैठने वाला, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਆ नहीं करने वाला। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। मुझे कई जवान बच्चे होते हैं, ਕਈ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, और घर में माता पिता प्रार्थना करते ਘਰ हैं, ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, फिर थोड़ी सी भी उनके अंदर अशांति है, कोई झगड़ा हो जाता है, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ तो भावे वो बात करें या ना करें, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, रोटी भर पेट खाएंगे, ਰੋਟੀ ਦਬਾ ਕੇ ਖਾਣਗੇ, पर देख रहे हैं कि घर में प्रार्थना चल रही, वो प्रार्थना में नहीं ਪਰ बैठे, ਵੇਖ ਰਹੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਦੁਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ क्योंकि मूड ठीक नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ध्यान रखिए, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, हमारी प्रार्थनाएं खुदा सुनेगा नहीं। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। हम मसीही हैं, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। मतलब कि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो किसी और को खड़ा कर देगा, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। है ना? ऐसी जरूरत नहीं है ਇਸ उसकी। ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ आज से ਕੋਈ। कितनी बड़ी कंपनी है, ਅੱਜ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, 1000 निकलते तो 1000 ज्वाइनिंग करते हैं, ਹਜ਼ਾਰ ਅਗਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਆ बड़े ਜਾਂਦੇ। बड़े डिग्री होल्डर्स खड़े हुए हैं, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਕਤਾਰ सुबह 'ਚ, से शाम तक इंटरव्यू के लिए खड़े हुए हैं, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। लाखों लाखों रुपए देके उन्हें डिग्रियों को होल्ड किया है, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 1000 निकल रहे हैं, 1000 जा रहे हैं। ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰ। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखो। आप नहीं प्रार्थना करेंगे, आप एक की बजाय 1000 को खुदा खड़ा करेगा, ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਖੜਿਆ ਕਰ ਦੇਗਾ। बहुत परमेश्वर लेकर आएगा ਬਹੁਤ बच्चों ਸਾਰੇ को। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਆਏਗਾ। अभी देखिए हमारा जो शनिवार रात का यूथ मीटिंग चलता है, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, अब इस यूथ मीटिंग में एक बड़ी दिलचस्प चीज क्या देखने को ਅਤੇ मिलती है। ਇਸ ਯੂਥ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? पुराने बच्चे हमारे ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ वो ऐसे मीटिंग में आएंगे, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਉਣਗੇ, बैठेंगे, ਬੈਠਣਗੇ, आराधना करेंगे, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ, ताली बजाएंगे, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣਗੇ, सब कर रहे हैं। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ पर ਹਨ। अभी जो नया टीम, एक नया जो एक आर्मी ज्वाइन करी हुई है, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ नए ਹੈ, नए बच्चे जो निकल ਨਵੇਂ के ਨਵੇਂ आए ਬੱਚੇ हैं, ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, वो लोग कंट्रोल से बाहर, ਉਹ ਤੇ ਕਾਬੂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। आत्मा में भर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, गैर जुबान बात कर रहे हैं। ਉਹ ਆਤਮਾ ਚ ਪਾ ਰਹੇ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ, ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ। अभी जो पुराने जवान बच्चे हमारे सारे एल्डर हो गए, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਐਲਡਰ ਹੋ ਗਏ। एल्डर में सबको एल्डर की ਉਹ पोस्ट दी ਸਾਰਿਆਂ हुई ਨੂੰ ਐਲਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ है। वो ਦਿੱਤੀ। यूथ मीटिंग में बस यूं ही ਉਹ ਯੂਥ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। बाकी जो नई अभी भर्ती हुई है वो तो देखो इधर से उधर तो उधर से उधर, वो आत्मा में भरते चले जाते ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। हैं। आप नहीं तो कोई और ही सही, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੀ। आराधना रुकेगी नहीं। ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। कलाम कहता है जो मेरी महिमा है वो मैं लेके रहूंगा। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। तू नहीं दे पाया, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, तेरी जगह तेरे स्थान पे तीसरे को खड़ा करो। ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ध्यान ਕਰਾਂਗਾ। रखिएगा, आपको परमेश्वर चुनता है आराधनाओं के लिए। आप ये ना सोचे कि आपने आराधना मिस करी, आपने आराधना रद्द कर दी, ना सोचे आपको खुदा ने अपनी हजूरी में आने से आपको रद्द कर दिया। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਬੰਦਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰਾਧਨਾ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ लेकिन ਆਓ। आराधना के लिए आप रद्द कर दिए गए, अगर ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ संडे की ਗਏ, मीटिंग के लिए आप रद्द कर दिए ਸੰਡੇ गए, ਦੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, आप तो स्वर्ग के राज्य के लिए भी रद्द कर दिए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ जाएंगे। ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ इसलिए ਜਾਓਗੇ। प्रिय परमेश्वर के ਇਸ ਕਰਕੇ लोगों, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, प्रिय परमेश्वर के ਪਰਮੇਸ਼ਰ जवान, ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਵਾਨ, हम अपनी प्रार्थनाओं को आगे बढ़ाएं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ विशेष ਵਧਾਈਏ। कैसे भी होने दें,
ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣ, कैसे भी हालात होने ਇਸ दें, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, खुदा से प्रार्थना खुदा को देने वाला आदर खुदा को दें। ਆਰਾਧਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ। आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी से, आपकी सिचुएशन से, आपकी प्रॉब्लम से खुदा की आराधना का कोई कनेक्शन नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। पर आज खुदा की आराधना, खुदा की भक्ति हमारे मूड पे डिपेंड हो रही है। ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। है ना, कई लोग आराधना, कलाम कहता है तुम दिल से आराधना करो, ਅਤੇ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। गीतकार कहता है मैं दिल से आराधना करूं। ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੀਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। आज की हमारी पीढ़ी ਪਰ कहती ਅੱਜ है, ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? आज साडा मूड नहीं है ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ अरदास करने का। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ आज ਵਾਸਤੇ। साडा मूड नहीं है आज साडा पवित्र आत्मा पढ़ने ਅੱਜ का। ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚ आज ਪੜ੍ਹੀਏ। साडा मूड नहीं है कि हम पवित्र बाइबल पढ़े। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। कलाम कहता है दिल से आराधना करो। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ साडे ਕਰੋ। बंदे बोलते जी साडा तो मूड ही नहीं ਪਰ है। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। कौन सा परमात्मा तो कौन सा खुदा तो कौन सा छुड़ाने वाला तो केड़ा जीवित परमेश्वर सब जाए परे। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਈ ਪਰੇ। क्योंकि आज साडा क्या नहीं ਕਿਉਂਕਿ है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? जोर से बोले, जोर से। आज साडा क्या नहीं है? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? अरे बाबी नहीं होली, क्या नहीं है आज साडा? ਅੱਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ? आज साडा ना मूड नहीं ਅੱਜ है। ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। बाइबल स्टडी आ रहे हैं क्या? ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। आज साडा मूड नहीं है। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा, कोई बात नहीं, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ध्यान रखिएगा। ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। मरना आपने भी, मरना हमने भी। ਮਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈ। और जब खुदा के सिंहासन के सामने खड़े हुए ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਗੇ, परमेश्वर हम ना धारीवाल सेंटर के हैं, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। पंजाब TPM वाले हैं। ਉਹ ਟੀਪੀਐਮ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ अंदर बुला लोगे क्या? ਅੰਦਰ ਸੱਦ ਲੋਗੇ ਸਾਨੂੰ? अंदर आ जाए। ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? परमेश्वर बोलेगा ना आज ना मेरा मूड नहीं है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरा मूड नहीं है। ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। जहाँ से आए वापस लौट जाओ, मैं नहीं जानता। ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। आगे खुदावंद आपके मूड पे डिपेंड नहीं होता। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। यदि वो अपने मूड पे आ ਜੇ गया ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈ ਦੇ ਮੂਡ ਤੇ ਆ तो ਗਿਆ ਤਾਂ आपके मूड के होश उड़ ਉਹ जाएंगे। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਗਾ। इसलिए ध्यान रखिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। कलाम कहता है वो खुदावंद ठट्टों में नहीं उड़ाया ਵਚਨ जाता। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। समय समाप्त। ਸਮਾਂ ਖਤਮ। आइए अपने घुटनों पे ਆਓ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ आंखों ਆਵਾਂਗੇ, को बंद करें। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। आइए उस खुदा की आदर, उस खुदा का आदर ਆਓ करें। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। इंसान का आदर मत करें। इंसान की इज्जत ना करिए। भले आप इंसान का आदर ना करें, बेशक इंसान की इज्जत ना आप करो, उस खुदा का आदर उस करें। परमेश्वर की इज्जत करो। जो देने वाला आदर उस खुदा को दें। जो देने वाला आदर उन्हें दइए। अपने ज्ञान, अपने वैभव के ऊपर खुदा की आराधना डिपेंड ना होने दें। अपने ज्ञान पे अपनी योग्यता के ऊपर परमेश्वर की आराधना ਨੂੰ निर्भर ना होने आपके दइए। मूड के ऊपर खुदा की आराधना को ना होने दें। ਤੁਹਾਡੇ मूड के ऊपर परमेश्वर की आराधना निर्भर ना होने दइए। मेरा मूड बन रहा है तो मैं आराधना कर पाऊंगा। मेरा मूड बनेगा तो मैं आराधना कर पाऊंगा। प्रिय परमेश्वर के खुदा के लोगों, प्यारे लोगों, प्रिय परमेश्वर के जवान, परमेश्वर के प्यारे जवान, वो एक एक दिन आपको देखता है। वो एक एक दिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ है। देखिए कलाम क्या कहता है। देखो वचन की बोलता है। इस्राएल का परमेश्वर ना तो सोता ना तो ऊँगता है। इस्राएल का परमेश्वर ना सौंदा ना ऊँघदा है, ना वो निरंतर देखता वो है। लगातार देखता है। यदि एक पल भी उसने आपके साथ ये बोल दिया अगर एक पल भी उसने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बोलता तो कि आज ना 2 मिनट के लिए संभालने के लिए मेरा मूड नहीं कि है, आज तेनू 2 मिनट संभालने लिए मेरा मूड नहीं है, मैं तेरे पास, मैं 2 मिनट के लिए नहीं संभाल नहीं पाऊंगा मैं तुझे। 2 मिनट तक तेनू नहीं संभाल पाऊंगा। कलाम कहता है खुदा ने 2 मिनट के लिए भी हमारा हाथ छोड़ दिया। और वचन कहता अगर 2 मिनट वास्ते भी परमेश्वर का हाथ शैतान छाड़ता, आपके टुकड़े करके लेके चले जाएगा। शैतान ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟੇ करके ले जाएगा। वो देखिए वो आपके मूड पे, अपने मूड पे डिपेंड नहीं हो देखो रहा। ਤੁਹਾਡੇ मूड ਤੇ निर्भर नहीं कर रहा पर हो। आज हम आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आज हम अपने मूड के ऊपर डिपेंड होते पर हैं। आज ਅਸੀਂ आराधना प्रार्थना करने वास्ते अपने मूड ਤੇ निर्भर करते हैं। आइए ऐसा ना और इस कीजिए। तरह ना करिए। प्रिय परमेश्वर के जवान, परमेश्वर के प्यारे जवान, आइए खुदा के आगे इस प्रकार से ना करें। और इस तरह परमेश्वर के इस तरह ना तो आप करिए। सृष्टिकर्ता की आराधना कर रहे हैं, आप उससे डरे। वो सृष्टिकर्ता की ਤੁਸੀਂ बंदगी करते हो तो डरिए। आप किसी इंसान की आराधना नहीं कर रहे ਤੁਸੀਂ हैं। ਕਿਸੇ इंसान की उपासना नहीं कर आप रहे। किसी हाथ से बनाए हुए परमात्मा की आराधना नहीं कर रहे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ नहीं कर रहे। आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं उस परमेश्वर से जो आपकी प्रार्थनाओं के वसीले आपको बचाएगा। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। यदि आपके पास आराधना नहीं, आपके जीवन में प्रार्थना नहीं, आपकी अरदासें आपको बचाएंगी अगर नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ विश्वास में ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ। आए, उसका आदर करें। ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ। प्रार्थनाएं आपको बचा लेंगी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ आपका ਲੈਣਗੀਆਂ। विश्वास आपको बचाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। आपका विश्वास आपको बचाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। अपने
अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाए, आप अपनी प्रार्थना भी अपने जीवन में बना देंगे। उसका आदर करो, परमेश्वर की इज्जत करिए और उसका आदर करो, और परमेश्वर का आदर करिए। आपका आदर करेगा, आपका आदर करेगा, आपका आदर करेगा, आपका आदर करेगा। हर एक परिस्थितियों में, हर एक हालत में बेचो, हर एक स्थितियों में, हर एक हालत में बेचो। उपासना करे, प्रार्थना करिए, उसका आराधना करे, आराधना करिए। आप उसकी उपासना करते हैं, आराधना कर दोस्ती, आप उसकी आराधना को महत्व देते हैं, उसकी आराधना में अहमियत देते हो तो, आप बंदगियों को महत्व देते हैं, बंदगी में अहमियत देते हो तो, संडे आराधना को महत्व देते हैं, एक बार की बंदगी में अहमियत देते हो तो, आपको महत्व देगा, आपको हमें अहमियत देगा। कलाम कहता है आदर कर तो आदर प्राप्त होगा, वचन कहता है आदर कर दे आदर पाएगा। प्रार्थना करे, दुआ करिए, प्रार्थना करे, दुआ करिए, प्रार्थना करे, दुआ कर रहिए, प्रार्थना करे, प्रार्थना करिए। प्रार्थना की आराधना आपको नरक से बचाएगी, प्रार्थना राधा दोनों मन को बचाएगी। के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाइए। आमीन।